Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In the last two lectures, we have already discussed about motion of an object in a vertical circle, and we have already gone through a variety of important points which are linked with the same concept. And now in today's lecture, we will be discussing some important questions which you people can expect for the competitive exams like NEET, IIT, JEE. So let us suppose we have first basic question over here. आप लिख लीजिए क्वेश्चन, लिख लीजिए आप, राइट डाउन ए क्वेश्चन. A particle of mass m is attached to a string of length L and given a velocity under root of 10 gl. Given a velocity under root of 10 gl in horizontal direction at the lowest point. Find, we simply have to find tension in the string. Find tension in string at, first part is at lowest point. At lowest point, again we have to find the tension in the string at highest point, and again we have to find the tension in the string when the string makes an angle of 60 degree with the lower vertical. That means when string makes an angle, when string makes an angle of 60 degree with lower vertical, ठीक. देख लीजिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है. एक ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कल में इसको मूव कराना है और एक स्ट्रिंग के साथ ये कनेक्ट है. लोवेस्ट पॉइंट पे इसको वेलोसिटी दी जा रही है कितनी, अंडर रूट ऑफ 10 GL, और L जो है ये स्ट्रिंग की लेंथ है यानी ये रेडियस है. तो सबसे पहले आप बताइए क्या सर्कल कंप्लीट होगा. ऑब्वियसली लोवेस्ट पॉइंट पे अगर वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ 5 RG या इससे ज़्यादा, यहाँ तो 10 RG है यानी 10 LG है यानी 5 RG से ज़्यादा, तो सर्कल कंप्लीट होगा. ठीक, ओके. नाउ वी सिंपली हैव टू फाइंड द टेंशन. हमें टेंशन ढूंढना है. तो टेंशन ढूंढने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हम ऑलरेडी दो फॉर्मूलाज हमने पढ़ी हैं टू फाइंड द टेंशन एट एनी लोकेशन. सपोज अगर किसी भी लोकेशन पे जहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, आप कहीं पर भी टेंशन ढूंढना चाहते हैं तो किसके बराबर होता है, शाबाश, T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. ठीक है ना. ये टेंशन की फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और v उस पॉइंट पे वेलोसिटी है जिस पॉइंट पे आप टेंशन ढूंढना चाहते हैं. ठीक, okay. Now again we have another very important formula to find the velocity at a particular location. मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ velocity at a particular location. उसकी फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू VL स्क्वायर यानी velocity at lowest point VL स्क्वायर माइनस 2gr into 1 minus cos theta. These are two generalizations, these are two general formulas. The first formula can be used to find the tension at any location, and this formula can be used to find the velocity of the particle at any location. Now in the first part we simply need to find the tension at the lowest point. Lowest point पे बड़ा हमें tension चाहिए. तो सबसे पहले lowest point पे थीटा कितना होगा, obviously 0, और lowest point की velocity भी already दी हुई है. We can simply find the value of the tension. तो बताइए पहले पार्ट का आंसर क्या आएगा. मैं लिखूंगा फॉर फर्स्ट पार्ट T शाबाश माइनस mg, यहाँ पे थीटा 0 है, cos 0 हो गया बेटा 1, इज इक्वल टू m बाई आर. आर जो है ये लेंथ है स्ट्रिंग की, तो मैं लिखूंगा m बाई एल, और v स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 10 GL का स्क्वायर. ठीक, स्क्वायर रूट कटेगा.
सो टेंशन किसके बराबर आएगा, मैं लिखूंगा T माइनस एम जी, दैट इज इक्वल टू, नाउ एल और एल कटेगा तो ये बनेगा 10 mg. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन, mg यहाँ जाएगा and it will be equal to 11 times the weight of the object, 11 times mg. So this will be the value of the tension when the particle is at lowest point. Again, now can you find the value of the tension when the particle is at highest point? Obviously. So highest point के लिए formula मैं use करूँगा. अभी थीटा का वैल्यू क्या आएगा, जब पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे गया होगा तो थीटा का वैल्यू बेटा आएगा 180 डिग्री, तो यहाँ पे cos 180 लेना पड़ेगा. और टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए मुझे वेलोसिटी भी चाहिए, बिकॉज जब मैं टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए रिलेशन यूज़ करूँगा आई नीड द वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑल्सो. सो टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए वेलोसिटी मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूँगा. ठीक, ओके. नाउ फर्स्ट फॉर द सेकेंड पार्ट, टू फाइंड द टेंशन एट हाइस्ट पॉइंट, फर्स्ट आई विल ट्राई टू फाइंड द वेलोसिटी एट द हाइस्ट पॉइंट. ठीक है ना, हाइस्ट पॉइंट पे बेटा वेलोसिटी पहले ढूंढेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे, वहाँ से टेंशन का वैल्यू निकल के आएगा. तो ये फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा. तो मुझे बताइए हाइस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या आएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल, व्हाट इज द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, इट इज अंडर रूट ऑफ 10 GL. ये ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका लेना पड़ेगा स्क्वायर माइनस शाबाश 2GR किसके बराबर है, वो तो लेंथ के बराबर है. और यहाँ पर क्या आएगा बेटा 1 माइनस कॉस 180 होता है -1. सो 1 माइनस -1 हो गया 1 + 1 दैट इज 2. ठीक, सो ये यहाँ पर कटेगा. सो इट इज वी स्क्वायर इक्वल टू बनेगा 10 GL, इट इज 10 GL माइनस 4 GL. सो दैट मीन्स वेलोसिटी किसके बराबर आएगी बेटा, यहाँ से अगर हम देखेंगे व्हाट इज द वेलोसिटी नाउ इक्वल, इट इज वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, वी स्क्वायर विल बी इक्वल 10 GL minus 4 GL, it will be 6 GL. And velocity will be equal to, ये स्क्वायर यहाँ जाएगा, ये अंडर रूट बनेगा, अंडर रूट ऑफ 6 GL. So this is the velocity at the topmost point. Now we can easily find the value of the tension at the topmost point. ठीक है ना, तो topmost point पे अब टेंशन क्या होएगा, so यहाँ पर लिखूंगा मैं, so it is under root 6 GL. याद रखिए topmost point पे velocity है. Now ये फॉर्मूला यूज करेंगे टेंशन निकालने के लिए, 10T माइनस शाबाश इट इज mg cos 180, बिकॉज टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए थीटा 180 है, cos 180 हो गया बेटा -1, दैट इज इक्वल टू m/r जो कि रेडियस है l के बराबर मैं लेता हूँ. और v किसके बराबर आया, अभी आया अंडर रूट ऑफ 6 GL के बराबर, जिसका लेना पड़ेगा स्क्वायर. ठीक, स्क्वायर रूट विल कैंसिल आउट, ठीक बनेगा t माइनस माइनस हो गया प्लस mg, l कटेगा, सो दैट इज इक्वल टू 6 टाइम्स mg. सो ये इस बार जाएगा, सो टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स mg, 5 टाइम्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सिंपल. ठीक, या वैसे भी कर सकते थे. अगर आपको याद होगा इससे पहले मैंने जो लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन बेटा निकाला, आराम से सुनिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन जो आया था वो आया था 11 mg. ठीक है ना, ये सारा करने की जरूरत भी नहीं थी, बिकॉज हमें पता है टॉप मोस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट पे अगर हम टेंशन का डिफरेंस देखेंगे कभी भी वट एवर द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, द डिफरेंस बिटवीन द टेंशन एट टॉप एंड लोवेस्ट पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू 6 टाइम्स mg, 6 टाइम्स द वेट. सो दैट मीन्स यहाँ पर अगर टेंशन 11 mg होगा तो यहाँ पर 5 होगा, बिकॉज 11 माइनस 5 हो गया 6, 11 माइनस 5 हो गया 6. सो दैट मीन्स ये सारा करने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप डायरेक्टली कह सकते थे यहाँ पर जो वेट है इट इज़ 5. Now in the third case we need to find the tension when the string makes an angle of 60 degree with the lower vertical. यानी जब थीटा 60 होगा उस टाइम पे हमें टेंशन ढूंढना है. तो हम फिर से क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू पुट करेंगे 60, पहले उस पॉइंट पे वेलोसिटी ढूंढेंगे, फिर ये फॉर्मूला यूज करके हमें टेंशन मिलेगा. ठीक, सो तो तीसरे पार्ट का आंसर हम कैसे ढूंढेंगे बेटा, थर्ड पार्ट का आंसर, फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री.
So velocity v square will be equal, what is the velocity at the lowest point? It is given as under root of 10 gl square minus 2g, r के बदले बेटा क्या लिखेंगे l, यहाँ पे आएगा 1 minus cos 60, cos 60 हो गया 1/2. So v square will be equal to 10 gl minus बनेगा 2gl, 1 minus 1/2 हो गया 1/2, 2 कटेगा, v square will be equal to 10 gl minus gl, this is 9 gl, and that means velocity is equal to under root of 9 gl. This is the velocity of the particle at an angle of 60 degree. Now we need to find the value of tension at 60 degree angle. So बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करके हमें टेंशन मिलेगा. सो मैं लिखूंगा टी माइनस, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का ये वैल्यू पुट करेंगे, टी माइनस शाबाश एम जी कॉस 60 होता है 1/2 बिकॉज थीटा 60 पुट करना है, एंड दैट इज इक्वल टू एम बाई आर किसके बराबर है एल, इट इज वी स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ 9gl स्क्वायर. बहुत सिंपल है, स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल, सो दैट इज इक्वल, यहाँ पर मैं लिखूंगा इज इक्वल एल एल कटेगा, बनेगा 9 टाइम्स एम जी प्लस एम जी बाई 2, 9 टाइम्स एम जी प्लस एम जी बाई 2, एंड दैट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे 18, that means 19 mg by 2. This will be the value of the tension when the string makes an angle of 60 degree with the lower vertical. ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे. तो बेटा दूसरा क्वेश्चन आप लिख लीजिए जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 2. A block is released from height h on a smooth track. Find the minimum value of h so that it completes the vertical circle. ठीक, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है. दिस इज ग्राउंड, हमारे पास एक स्मूथ वर्टिकल ट्रैक है और ऑब्जेक्ट को हम ऐसे छोड़ रहे हैं यहाँ से फ्रॉम ए हाइट h. इट इज फ्रिक्शनलेस एंड वी आर ड्रॉपिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस हाइट h. तो क्वेश्चन में ये बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जब नीचे जाएगा तो ये सर्कल में मूव करेगा और इस सर्कल का रेडियस बेटा r. ठीक, क्वेश्चन बता रहा है कि आप बताइए कम से कम कितनी हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए ताकि ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कल जस्ट कंप्लीट करे. ठीक है ना, तो ये बेसिक सिचुएशन है. वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए कंडीशन क्या है, द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5rg. ठीक, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जब ये ऑब्जेक्ट टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे की ओर आएगा, यहाँ पर इसको ड्रॉप कर रहा है यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, बट इट हैज़ सम पोटेंशियल एनर्जी एट दिस वेरी पॉइंट एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे दैट इज mgh. नाउ एज ऑब्जेक्ट मूव्स डाउन, जब ये नीचे आएगा तो इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे किस में कन्वर्ट हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी में, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर. तो इस पॉइंट पे मुझे इजीली वेलोसिटी मिली. जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर थी mgh वो कन्वर्ट हो गई बेटा किस में, काइनेटिक एनर्जी में, किसके बराबर, हाफ ऑफ mv स्क्वायर. सो ये mgh है, ये हाफ ऑफ mv स्क्वायर है, mm कटेगा 2 यहाँ जाएगा, सो वी विल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh. सो ये वेलोसिटी हमें आएंगी लोवेस्ट पॉइंट पे ये h, हमें h का वैल्यू चाहिए. अब जस्ट सर्कल कंप्लीट हो, व्हाट इज द कंडीशन, द वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5rg, यानी ये वेलोसिटी जो हमारी आई, जो अंडर रूट 2gh आई, इट शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5rg, तब जाके सर्कल कंप्लीट होगा. क्या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना, या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं चलेगी. सो दिस द मिनिमम कंडीशन. तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सो ये तो इक्वेट कर रहे हैं आप लोग, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gh विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5rg. तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड से, रूट कटेगा, इम्प्लाइज दैट 2gh किसके बराबर आएगा, 5rg के बराबर आएगा, g कैंसिल होगा, h विल बी इक्वल टू 5r/2, यानी 2.5 टाइम्स द रेडियस. यानी अगर पार्टिकल को आप ड्रॉप करेंगे कितनी हाइट से,
इस रेडियस का डबल नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा 2.5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल से अगर आप हाइट अगर कितनी होगी 2.5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये ऑब्जेक्ट सर्कल कंप्लीट करेगा। अगर हाइट इससे कम होगी तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। अगर हाइट इससे ज़्यादा होगी तो सर्कल तब भी कंप्लीट होगा। अगर हाइट कम होगी तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, और सर्कल कंप्लीट नहीं होगा उसका मतलब है कि या तो ऑसिलेशंस होंगी या तो ये लीव करेगा सर्कुलर पाथ। ठीक, तो आगे देखा जाएगा आगे वाले क्वेश्चन में। तो ये बेसिक क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बराबर ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पे कंडीशन थोड़ी चेंज है। आप लिख लीजिए इन द सेम क्वेश्चन, आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली नया ही क्वेश्चन है। तो आप लिखिए इन द अबव क्वेश्चन इफ h इज इक्वल टू 3r। क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन बराबर यही है बेटा, क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन बता रहा है अगर जिस हाइट से आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ये तीसरा क्वेश्चन है, अगर ये हाइट जो है, इफ दिस हाइट इज इक्वल टू 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो मुझे सबसे पहले बताइए सर्कल कंप्लीट होगा ऑब्वियसली। अगर 2.5 टाइम्स द रेडियस से आप ड्रॉप करेंगे सर्कल कंप्लीट होगा। इससे ज़्यादा हाइट से भी ड्रॉप करेंगे, यानी 3r इससे ज़्यादा है ना, तब भी सर्कल कंप्लीट होगा। इससे कम नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल क्वेश्चन समझ लीजिए, इफ़ h इज इक्वल टू 3r, क्वेश्चन बता रहा है अगर हम इस हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे, हमें निकालना क्या है, फाइंड, वी हैव टू फाइंड नॉर्मल फोर्स एट पॉइंट ए एंड बी, एट ए एंड बी। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, बहुत सिंपल है। इन दो पॉइंट्स पे बेटा हमें नॉर्मल फोर्स ढूंढना है। तो नॉर्मल फोर्स ढूंढने के लिए मुझे इन पॉइंट्स पे वेलोसिटी चाहिए, बिकॉज आप सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट होगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, नीचे से इसका वेट होगा, यहाँ से नॉर्मल फोर्स होगा, ठीक है ना, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा। और वो फोर्सेस जो होते हैं सर्कल में, जो फोर्सेस होते हैं रेडियल डायरेक्शन में बैलेंस होते हैं। इस पॉइंट के लिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से नॉर्मल फोर्स होगा, नीचे से एक तो वेट है और नीचे से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर आएगा, mg प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, ठीक है ना। बट इसका मतलब है हमें इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, पहले इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, तब जाके आप ऐसा सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे वेलोसिटी कैसे ढूंढेंगे, कि कैसे वेलोसिटी ढूंढी जाए, ये कैसे मैंने लिखा, ये मैंने लिखा रेडियल डायरेक्शन में जो होते हैं फोर्सेस बैलेंस होते हैं। यहाँ से एक तो नॉर्मल फोर्स होगा, यहाँ से वेट है और यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक, और अब आप ये नहीं कह सकते सेंट्रीपिटल फोर्स हो तो नॉर्मल ही इसको दे रहा है, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्चुअली देयर। नाउ अब मुझे बताइए वेलोसिटी कैसे ढूंढें। फिर से मैं एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करूँगा, या तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करूँगा या यही पोटेंशियल एनर्जी हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, अभी h किसके बराबर दिया है, 3r। सो इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू mg, हाइट कितनी है, दैट इज इक्वल टू 3r, and that has been converted into kinetic energy, that is half of mv square. mm will cancel out, तो ये बनेगा 6gr, this is v square, that means v is equal to under root of 6gr. तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी है अंडर रूट 6gr. नाउ कैन यू फाइंड द नॉर्मल एट दिस पॉइंट। सो हमें पता है एट पॉइंट ए के लिए मैं यूज़ करूँगा, शाबाश, नॉर्मल फोर्स किसके बराबर आएगा, इट विल बी इक्वल टू mg प्लस m बाई r और v स्क्वायर तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, या तो v आप लिख लीजिए अंडर रूट ऑफ 6gr, v अंडर रूट 6gr इसका स्क्वायर रूट विल कैंसिल आउट, सो नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू mg प्लस ये r कटेगा, सो दैट इज इक्वल टू 6 टाइम्स mg एंड दैट इज इक्वल टू 7 टाइम्स mg, 7 टाइम्स द वेट। ठीक, so this is the normal force at point A. Can now you find the normal force at point B. पॉइंट बी पे आप नॉर्मल फोर्स बता सकते हैं, शाबाश। ऑब्वियसली या तो सबसे पहले आप इस पॉइंट पे वेलोसिटी ढूंढ लीजिए, फिर सारा कुछ कर लीजिए, या तो हमें पता है इन दो पॉइंट्स में जो टेंशन होगा या जो नॉर्मल फोर्स होगा उनका डिफरेंस हमेशा किसके बराबर होता है, 6 टाइम्स द वेट। तो यहाँ पर अगर नॉर्मल है 7 mg, तो यहाँ पर नॉर्मल कितना होगा फिर, शाबाश, mg ऑब्वियसली।
सो एट पॉइंट बी पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू mg। ठीक, या तो आप एनर्जी कंजर्वेशन से यहाँ पर पहले वेलोसिटी ढूंढ सकते हैं, फिर यहाँ पर ऐसे इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पर इक्वेशन कैसे आएगी शाबाश, नीचे से जो फोर्स होगा इट इज नॉर्मल, नीचे से वेट होगा mg, और यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी नॉर्मल प्लस mg विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, इस पॉइंट पे पहले वेलोसिटी ढूंढ सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगा के फिर अकॉर्डिंगली आगे जा सकते हैं। या तो डायरेक्टली हमें पता है डिफरेंस जो होगा दैट इज इक्वल टू 6 टाइम्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, और एक क्वेश्चन लिख लीजिए। ए बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L1 is given a minimum velocity required to complete a full circle in the vertical plane, full stop. At the highest point it collides elastically with another bob of mass m, same mass, suspended by a string of length L2 which is initially at rest, full stop. If the second bob after collision acquires a minimum speed required to complete the circle in vertical plane, the ratio of L1 and L2 is। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये शायद आपको आए। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है, क्वेश्चन बता रहा है इसकी लेंथ जो है वो L1 है, हम इसको मिनिमम वेलोसिटी दे रहे हैं ताकि सर्कल कंप्लीट होगा। ठीक है, सो ये जो मिनिमम वेलोसिटी हम इसको देंगे कुछ ना कुछ √5g L1 देंगे। तो क्वेश्चन बता रहा है जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाता है, यहाँ पर इसके साथ और एक बॉब जो है, यहाँ पर और एक बॉब है, ये वाला बॉब इस वाले बॉब को हिट करता है और इसकी लेंथ जो है बेटा वो L2 है, और इसको उतनी सफिशिएंट वेलोसिटी मिलती है ताकि अपना वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करता है। ठीक है ना, सो दैट मीन्स ये पार्टिकल जब यहाँ जाएगा इसके साथ हेड ऑन कोलिजन करता है, कोलिजन के बाद ये ऑब्जेक्ट इस सर्कल में मूव करने लगता है। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ्स। तो सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ पर मुझे मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी ताकि सर्कल जस्ट कंप्लीट हो, √5g L1। और जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, √rg होता है ना, तो √g L1, r मीन्स L1। अब इसको कितनी वेलोसिटी चाहिए ताकि अपना सर्कल कंप्लीट करे, ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है, सो इसको कितनी वेलोसिटी चाहिए, √5g L2। इसको इतनी वेलोसिटी चाहिए ताकि ये सर्कल कंप्लीट करे, और वो वेलोसिटी इसको कहाँ से मिलेगी, ये वेलोसिटी इसको देगी, यानी ये वेलोसिटी इसके बराबर रखेंगे तो वहाँ से हमें रेशियो ऑफ लेंथ्स मिलेगा। तो मैं लिखूंगा √g L1 किसके बराबर आएगा, √5g L2, स्क्वायरिंग कर लीजिए, g L1 विल बी इक्वल टू 5g L2, g कटेगा, नो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ्स L1 by L2, दैट इज इक्वल टू 5/1, सिंपल। ठीक, क्वेश्चन बहुत आसान था। एक बॉब है, इसको हम उतनी मिनिमम वेलोसिटी देते हैं ताकि ये सर्कल कंप्लीट करता है, इसकी लेंथ L1 है तो मिनिमम इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इतनी आएगी, और वही वेलोसिटी ये गेन कर लेता है, और इसको कितनी चाहिए, √5g L2। दैट मीन ये जो इसकी वेलोसिटी आई वो मैंने इसके बराबर रखी, बिकॉज ये इसको वो वेलोसिटी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वर्टिकल सर्कल बेटा कंप्लीट होता है। सो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हैं। तो बेटा आप और एक क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट डाउन एन अनदर क्वेश्चन। In the given situation, when a ball of mass m is released, it will swing down the dotted arc। ठीक है, हमारे पास देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक रस्सी है जो कि यहाँ से बंद है, यहाँ पर एक बॉल जो इसके साथ अटैच है, हम इसको छोड़ रहे हैं और ये यहाँ से मूव कर रही है ये बॉल। ठीक, तो उसके बाद क्वेश्चन में ये बता रहा है कि अब और एक चीज़ भी है, यहाँ पर इस पता नहीं बीच में कहीं पर हमने एक नेल रखा हुआ है, इट इज़ अ नेल। तो लॉजिकली सबसे पहले देखेंगे क्या होगा, जब ये ऑब्जेक्ट ये बॉल नीचे आएगी, ये रस्सी भी नीचे आएगी ना यहाँ तक, और जब ये रस्सी इधर को आएगी, यहाँ पर नेल रखा हुआ है तो ये रस्सी यहाँ बंद हो जाएगी, ये आगे नहीं जाएगी, लेकिन लोअर वाली बॉल जो है, लोअर वाला सेक्शन जो है वो यहाँ से सर्कल कंप्लीट करने बैठेगा। ठीक है ना, सिंपल। तो सर्कल, ये वाला सर्कल कंप्लीट होगा। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, पहला पार्ट नंबर ए,
हाउ फास्ट इट रीच द लोवेस्ट पॉइंट इन द स्विंग, हमें पहले इसकी वेलोसिटी ढूंढनी है। यहाँ पर क्या होगी, जब ये बॉल यहाँ से यहाँ आएगी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्ट्रिंग की लेंथ बेटा एल है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, यानी काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, तो जब ये नीचे आएगा ऑब्जेक्ट, इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, जब ये एल है, ये सारा भी एल ही होगा, ये एल ही है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgl and that will be converted into kinetic energy, that is half of mv square। यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, ये L है, ये हाइट L है, mgl, and that has been converted into kinetic energy at this very point। mm बेटा कटेगा, velocity will be equal to under root of 2gl। ठीक, so this is the velocity at the lowest point। यहाँ पर ये velocity है, lowest point पे velocity है। ठीक, अब मसला है, मसला ये है कि क्वेश्चन हमें बता रहा है, आप बताइए इस नेल की लोकेशन क्या होगी, इस नेल की लोकेशन क्या होगी ताकि सर्कल जस्ट कंप्लीट हो। फाइंड द लोकेशन ऑफ द नेल, यानी हमें ये डिस्टेंस चाहिए, इस नेल की लोकेशन क्या होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे ताकि सर्कल जस्ट कंप्लीट होगा। चूंकि वेलोसिटी अंडर रूट 2gl है तो बड़ा वाला सर्कल कंप्लीट तो होगा नहीं, लेकिन ये छोटा वाला सर्कल है, यहाँ पे इसकी लेंथ जो होगी, ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ होगी, टोटल लेंथ है L, ये वाली लेंथ ये है D हमने रखी, ये वाली लेंथ होगी L माइनस D। सो व्हाट शुड बी द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इन ऑर्डर टू फॉर द ऑब्जेक्ट टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल, अंडर रूट ऑफ 5gr, और r कितना होगा, r होगा L माइनस D। सो यहाँ पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5g L माइनस D, ताकि सर्कल कंप्लीट होगा। और वही ये वाली वेलोसिटी है जो यहाँ से आ रही है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gl। यहाँ से आपको D निकल के आएगा, D कितना होना चाहिए ताकि सर्कल जस्ट कंप्लीट हो। सो स्क्वायरिंग करेंगे, कटेगा तो ये आएगा 5g शाबाश L माइनस D इज इक्वल टू 2gl। और यहाँ पे कैलकुलेशंस जो होंगी दैट इज इक्वल टू 5gl फिर माइनस 5gd एंड दैट इज इक्वल टू 2gl। 2gl इधर आएगा, 5gl माइनस 2gl हो गया 3gl, ये उस बार जाएगा दैट इज इक्वल टू 5gd। तो gg कटेगा, d विल बी इक्वल टू 3l/5 इज इक्वल टू 3l/5 दैट इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स द लेंथ। यही हमें दूसरा पार्ट जो इसका था, दूसरा पार्ट यही था, शो दैट d मस्ट बी 0.6 टाइम्स l फॉर द ऑब्जेक्ट टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल। 0.6 टाइम्स L पे D होना चाहिए, नेल होना चाहिए इधर, ताकि सर्कल जस्ट कंप्लीट हो। अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्वेश्चन देखिए क्या था, हमारे पास एक रस्सी थी, उसके साथ ऑब्जेक्ट अटैच था, इस ऑब्जेक्ट को हम नीचे डाल रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर हमने एक नेल रखा था, तो जब ये रस्सी नीचे आएगी, यहाँ से यहाँ तक की रस्सी अब रुक जाएगी बिकॉज यहाँ पर नेल है, तो नीचे वाला पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट रस्सी का, ये वाला पार्ट वो सर्कल कंप्लीट करेगा, छोटा वाला सर्कल। तो सबसे पहले हमें इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए थी, वो इसके बराबर आई। सो सर्कल जस्ट कंप्लीट हो, जस्ट कंप्लीट होने के लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ 5gr। लेकिन इस सर्कल की का रेडियस कितना है, L माइनस डी, मैंने वही रखा अंडर रूट 5g L माइनस डी, और इसी को बराबर रखा इस वेलोसिटी के, वहाँ से d का वैल्यू निकल के हमें आ गया। ठीक, ओके, तो ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इसी क्वेश्चन में और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट नंबर C इस क्वेश्चन का लिखे आप, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग जस्ट बिफोर इट टच द नेल एंड जस्ट आफ्टर इट टच द नेल। हमें रस्सी में टेंशन चाहिए, हमें रस्सी में बेटा टेंशन चाहिए जब इसने नेल को टच करने से पहले। नेल को टच करने से पहले ये बड़े सर्कल में मूव कर रहा था, नेल को टच करने के बाद ये रस्सी जो है ये छोटे सर्कल में मूव करवा रही है पार्टिकल को। सो बिफोर टचिंग द नेल कैन यू फाइंड द टेंशन, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन चाहिए, तो टेंशन की फॉर्मूला है ना, T माइनस mg इज इक्वल टू mv²/r। यहाँ पे एक्चुअली था mg cos थीटा, बिकॉज लोएस्ट पॉइंट पे थीटा 0 आएगा, cos 0 इज 1, सो T माइनस mg इज इक्वल टू mv²/r, ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। ठीक, लेकिन नेल को टच करने से पहले अब रेडियस कितना लेंगे, रेडियस शाबाश कितना रेडियस लेंगे, बड़े वाले सर्कल का, बिकॉज ये बड़े वाले सर्कल, ऑल्दो आप ये बड़े सर्कल में घूमेगा तो नहीं,
लेकिन यहाँ से यहाँ इस रस्सी को लग रहा है कि मैं बड़े सर्कल में इस पार्टिकल को घुमा रही हूँ। तो मुझे बताइए, जस्ट ये याद रखना, ये वेलोसिटी √2gl, लोवेस्ट पॉइंट पे हमें कितनी वेलोसिटी आई, √2gl। ओके, नाउ कैन यू नाउ फाइंड द टेंशन जस्ट बिफोर टचिंग द नेल। तो मैं लिख रहा हूँ, ये सी पार्ट है इसका, जस्ट बिफोर टचिंग नेल, नेल को टच करने से पहले क्या लिखेंगे, शाबाश, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम बाई, रेडियस कितना लेंगे, एल के बराबर, एम बाई एल इंटू वी स्क्वायर, वी ऑलरेडी है 2gl √2gl, तो मैं लिखूँ √2gl का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कटेगा, सो टेंशन एल कटेगा, ये बनेगा 2mg, ये आएगा 2mg, ये उधर जाएगा, ये बनेगा mg, यानी ये हो गया 3 times mg। सो दिस विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग जस्ट बिफोर टचिंग द नेल, नेल को टच करने से पहले बेटा टेंशन ये होगा स्ट्रिंग में, ठीक। और नेल को टच करने के बाद अभी इस सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल का रेडियस क्या लेंगे, L माइनस टी। तो यहाँ पर कब क्या आएगा, अब मैं लूंगा जस्ट आफ्टर टचिंग द नेल। सो जस्ट आफ्टर टचिंग द नेल, फिर से यही फॉर्मूला आएगी, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम बाई, अभी रेडियस क्या लेंगे, इस रेडियस में मूव कर रहा है, सो L माइनस टी लेंगे, ठीक है ना। और वेलोसिटी क्या लेंगे, वेलोसिटी तो वही है √2gl का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये कटेगा, सो T किसके बराबर आएगा, m बाई L माइनस डी के बदले क्या लिखेंगे, डी ऑलरेडी हमें आया कितना, 0.6L, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पे क्या है, 2gl, ये उस पार जाएगा, प्लस आएगा mg, L कॉमन निकल के कैंसिल होगा, तो टेंशन का वैल्यू क्या आएगा, m बाई 1 माइनस 0.6 जो होगा, 1 माइनस 0.6, दैट विल बी इक्वल 0.4 इंटू 2g प्लस mg, ठीक। सो यहाँ पे जब ये कैलकुलेशंस आप करेंगे तो ऑलमोस्ट आ जाएगा, वो देख लेना आप, तकरीबन 6 times mg वो आ रहा है। सो दिस विल बी द टेंशन जस्ट आफ्टर टचिंग द नेल, ठीक। सो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।